अवेयर कि आपके साथ क्या होने जा रहा है। या बिल्कुल 3 days back, one accident was very big accident was happened in Ahmedabad. The या plane crash. Nobody knows कि आपके साथ क्या होने जा रहा है. ट्रू ट्रू Life is like that. लेकिन generally they don't attack you without any reason. क्योंकि I am doing it from the last many years. तो वो अटैक नहीं करते पहले, आपको पहले एक वार्निंग देने के लिए एक मॉक चार्ज करते हैं. दैट इज मॉक चार्ज. वो आपको पहले बता देंगे कि यू आर एंटरिंग इन माय डोमेन, तो या बेटर यू शट अप एंड गेट आउट. तो अगर आपने तब भी नहीं संभले, देन ओनली दे डोंट हैव एनी अनदर अल्टरनेट बट टू अटैक इट. टूरिज्म है जो आज के टाइम में बहुत लोग हैं जो वाइल्ड लाइफ देखने को पसंद करते हैं, दे गो टू ऑल दिस नेशनल पार्क. सो डोंट यू थिंक व्हेन दिस टूरिज्म इज इंक्रीजिंग एंड it is being promoted a lot, in a way it is also a threat to the wildlife and also to the all these animals and the forest? Hi friends, my name is Bhavya Mangla. I'm again back on the 42nd episode of Unfiltered Conversation. We started this series with the main objective of talking to the people from different fields, different aspects of life, and try to understand their perspective about what they think about their field where they are doing something which is exceptional. We started this series initially by talking to people who are into public speaking. Later on, we diversified into writers. Then later on to the mindfulness. And then after that, talking to different professionals. Now, if we look around ourselves, in general, we are talking a lot with respect to environment, with respect to climate change, and so many things. Maybe when we are talking in the TV discussions, or maybe in our houses, or when we see something happening anywhere, maybe in some mountains, we do talk about it, that what is happening and all that. But actually, our contribution is almost negligible or nothing there. Now, today I have a very interesting guest. The most important aspect about him is that he is contributing in his own way by giving a message to the people that how much the wildlife is important, how much the forests are important, and in case we are not going to take care with respect to the nature, then sooner or later there are different ways in which nature is going to tell us in different ways. So today my guest is Mr. Yogesh Bhatia. He has a total experience of more than 40 years. Initially, he was doing the photography just as a hobby, but for the last 6 years, he is doing it professionally. He's also mentoring with respect to how to do the wildlife photography. Mr. Bhatia, welcome. Thank you, thank you. Thanks to your audience also. Thank you, Mr. Mangla, to having me over here. So, Mr. Bhatia, let's start by understanding that when we talk about photography, especially with respect to the wildlife photography, how it is helping maybe the forest life, how it is affecting with respect to the climate change, if there's any contribution or any linkage between these two things? Definitely, definitely. Um, our photographs, which we carry from that forest, you people see it, then you develop interest in yourself. कि what is this? Is this a tiger? Tiger ऐसा होता है, हम भी देखने जाएंगे. तो उनको देख के आप भी जंगल की तरफ जाते हैं, Yeah. आपको देख के और लोग जाएंगे. तो इस तरह से क्या है, अवेयरनेस एक बढ़ेगी कि हाउ इम्पोर्टेंट द फॉरेस्ट इज फॉर द गवर्नमेंट पर से. इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम आल्सो. We have more tourism for the forest. Like we have lot of tourism coming, inbound tourism, for they are coming for that forest. So when they are getting lot of revenues, they are also going to protect the forest. So directly or indirectly, we are the ambassador of the forest. We are ambassador for the wildlife. We are conveying all things to you people, the people who are not going to the wildlife. If this is the wildlife, you should contribute, you should go. By in that way, indirectly, government also getting revenue, you are getting awareness, and your coming generations also will get that awareness. And this is
how we contribute and how the photography, wildlife photography, contribute to the mankind. No, when we talk about the forest, when we talk about wildlife, so they both are interrelated with each other, because if there is a forest, then there is a wildlife where there will be some animals which are there. Yeah. But often we are hearing a lot of things with respect to the wildlife, that they are being killed because they are being sold, and a lot of money is being, people are getting from there, and then their body parts are smuggled at different places. Uh, so, on one side, we are talking that we should preserve the forest, we should preserve the wildlife animals, but on the other side, it's a big business. So, what do you think about this thing? Lately, that was a lot of poaching was having that in our forest. Now that has not stopped. May say this is not stopped yet, but it's very reduced because people are getting awareness. Abhi last to last year in Kaziranga, that is in Assam, there Yeah. are no poaching of the rhinos for complete 1 year. Lately, that was a heavy poaching. सो जितना भी आप लोग जाएंगे, हम लोग जाएंगे, अवेयरनेस होगी, उतना ही पार्क के जो ऑफिशियल्स हैं वो अवेयर होंगे. अभी तो क्या होता है कि अगर एक दो 4-5 दिन में या 5-6 महीने में कोई टाइगर नजर नहीं आता पब्लिक को, जो कि नॉन टूरिज्म जोन में चला जाता है या नजर नहीं आता टूरिज्म जोन में, तो लोग हु एंड क्राई मचा देते, गया कहाँ. तो पार्क के ऑफिशियल्स को जवाब देना मुश्किल हो जाता है. तो उनको भी पूरी मेहनत लगती है उसको पोचिंग को रोकने के लिए. पहले बहुत होती थी, आपने शायद सुना होगा, वेरी फेमस पोचर इज हियर, जिसको बाद में पकड़ लिया गया था. अभी ऐसा नहीं है. तो हम्म. इसने भी बहुत ज्यादा इसको रोका है, जो भी अनफेयर ट्रेड होते हैं उसको बहुत ज्यादा रोका है. तो तो अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात या अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें, तो वाइल्ड लाइफ के लिए जंगल का होना, फॉरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है. बट जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जिस तरीके से लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, और अक्सर हम बहुत रेगुलर सुनते हैं कि पेड़ कट रहे हैं, जंगल के जंगल ख़त्म हो रहे हैं. तो अभी ये जो ट्रेंड चल रहा है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, सारी दुनिया में जो ट्रेंड चल रहा है, तो ऐसे में अभी जो फॉरेस्ट हैं वो बच रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये क्या है, क्या स्टेटस है अभी आज की डेट में? देखिए, मेरे घर में अगर 5 आदमी हैं, जी. मेरी फैमिली मेंबर, अगर मेरे बच्चों की शादी हो जाती है और मेरे घर में 10 हो जाते हैं, तो इसका जी. मतलब ये तो नहीं कि मैं आपका घर तोड़ के घुस जाऊंगा उसमें. अगर अगर चला भी गया तो आप उसको रोकेंगे, आप अपना डिफेंस करेंगे, या आप अपना डिफेंस मैकेनिज्म करेंगे. तो वही हो रहा है. अगर हम तोड़ रहे हैं उसको, जो कि नहीं होना चाहिए, तो जानवर जो है वो इंसान पे जो अटैक कर रहा है वो इसी वजह से कर रहा है कि आप वहां घुस रहे हैं, आप उसकी टेरिटरी में जा रहे हैं. तो वी शुड अवॉइड इट, वी शुड अवॉइड इट. बट इसको आप दूसरे में भी ले सकते हैं. अक्सर ऐसा आता है कि एक शेर था, वो किसी गांव में चला गया, किसी बच्चे को उसने उठा लिया या किसी जानवर को मार दिया. तो ऑब्वियसली है कि ऐसे में जो गांव वाले हैं उनको भी तो अपनी जान बचानी है, उनको भी तो इंश्योर करना है कि वो खेती बाड़ी कर सके. तो उनको भी जब मौका मिलता है तो वो भी घेर के मार देते हैं उसको, या घायल कर देते हैं. तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? यानी कि पहले तो आप उसका घर तोड़ते हैं और वो अपने घर में आता है, आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, अनइंटेंशनली उसने भी नुकसान पहुंचा दिया, तो वो भी यही कहेगा कि व्हाट इज रॉन्ग इन दैट. अगर वो भी यही सोचे तो उसको भी पूरा अधिकार है अपने आप को डिफेंस करने का. अगर आपने उसका घर तोड़ दिया, उसकी टेरिटरी खत्म कर दी, आपने वहां पे घर बना लिए और वो वहां आ गया, तो नेचुरली उसके लिए ह्यूमन जो है, देखिए वो दो जगह से आपने पढ़ा ही होगा कि दो वजह से वो ह्यूमन के ऊपर अटैक करता है. या तो वो कुछ बूढ़ा हो जाता है, कुछ नहीं खा पाता, ये ह्यूमन उसके लिए बहुत इजी प्रे हो जाता है, या
उसको आपसे खतरा है जान का। जब आप उसका घर तोड़ते हैं तो आपसे खतरा है उसको, तब वो अटैक करेगा। तो वो भी यही मान के चलता है कि व्हाट इज रॉन्ग इन दैट, तो उसको भी यही सोचने दीजिए कि व्हाट इज रॉन्ग इन दैट। तो दैट इज वेरी मच रॉन्ग कि वी शुड नॉट डू दैट थिंग। हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उनके घर में ना घुसे। एंड हु विल डिसाइड कि कौन किसके घर में घुसा है? मतलब अगर कोई गांव है, वो बहुत दिन से है, कई सालों से है, तो वहां कैसे पहले पता क्या था? लगेगा? वहां पहले क्या था? गांव तो इंसान ने बनाया ना। उससे पहले कुदरत ने वहां क्या बनाया हुआ था? गांव तो नहीं बनाया था, वहां जंगल ही होगा। या तो ये तो ऑब्वियस है, कौन डिसाइड करेगा कि आप उसके घर में घुसे हैं या वो आपके घर में आया? तो लेकिन उसके लिए ये है कि वेज ऑन मीन्स हैं। गवर्नमेंट अभी कर रही है कि गांव को रीएस्टेब्लिश कर रही है, उनको वहां से हटा के दूसरी जगह लेके जा रही है। अभी गवर्नमेंट इज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दैट। उतना तेजी से नहीं हो रहा जितना तेजी से होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ बैठ के ये बात कर देते हैं। अब उनके भी गवर्नमेंट के अपने कायदे कानून हैं, उनके अपनी जो है लिमिटेशंस हैं। तो लेकिन कर रहे हैं, अनडाउटली दे आर डूइंग इट, लेकिन तब भी इंसिडेंट जी, होते हैं। इंसिडेंट होते हैं। और अगर इंसिडेंट्स की हम बात करें, तो जो टूरिज्म है, जो आज के टाइम में बहुत लोग हैं जो वाइल्ड लाइफ देखने को पसंद करते हैं, दे गो टू ऑल दिस नेशनल पार्क। सो डोंट यू थिंक व्हेन दिस टूरिज्म इज इंक्रीजिंग एंड it is being promoted a lot, in a way it is also a threat to the wildlife and also to the all these animals and the forest? ये बहुत बड़ी डिबेट चल रही है इस पे, लेकिन हम टूरिज्म का पूरा हिस्सा, पूरा जंगल का पूरा हिस्सा नहीं टूरिज्म के लिए खोल रहे। हम सिर्फ 20% दे रहे हैं। 80% में वो लोग दैट एनिमल्स आर देयर। तो लेकिन तब भी हम कोशिश करके रश कम कर सकते हैं। कई बार मैंने देखा है कि अगर टाइगर जा रहा होता है तो उसके आगे पीछे से जिप्सीज उसको ऐसे घेर लेती हैं कि वो बेचारे के लिए निकलने के लिए जगह नहीं होती। लेकिन Yeah. पार्क उस पर बहुत ही, उन गाड़ियों पे बहुत ही सख्ती से अपने नियम और कानून लागू करता है, और वो कर भी रहा है। तो दैट इज इन दैट वे दे आर डूइंग देयर बेस्ट। So आपको लगता है कि we need to enhance this tourism more, or we need to make the tourists more aware about the forest, about this wild animals and how to deal with them? We make that the public awareness is necessary। एनहांस करके अगर हम अवेयरनेस नहीं देंगे तो वो क्यास हो जाएगा। तो एनहांस भी करें और अवेयरनेस भी दें ताकि क्यास ना हो, और उस पर एक सख्ती से उसके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करें। तो वो हैंड वो बराबर बराबर चलना चाहिए कि उसको एनहांस भी करें लेकिन विद इन कंट्रोल, डिसिप्लिन एनहांस करें। दैट हैज टू बी देयर। No, just like tourism, these days, a lot of people just like you who are uh, doing a lot of photography for the big cats as well as for the mammals. So, don't you think when you are doing photography and you are going close to all these animals, that is also a threat to their privacy? यस, दैट इज अनडाउटली दैट इज। लेकिन क्या होता है कि सुबह 3 घंटे या 4 घंटे के लिए पार्क खुलता है, Yeah. शाम को 3-4 घंटे के लिए पार्क खुलता है। तो इन बिटवीन का जो है देयर देयर टाइम। लेकिन अगर हम डिसिप्लिन रखेंगे तो वी विल नॉट इंटरवेन तो देयर प्राइवेसी। डिसिप्लिन इज वेरी नेसेसरी इन दैट वे, ताकि हम उनकी प्राइवेसी के अंदर इंटरवेन ना करें। उनको जो उनकी पर्सनल मूवमेंट्स हैं उसके लिए टाइम दें। तो उसके लिए पार्क अथॉरिटीज देखती भी हैं और देखना भी चाहिए कि, लेकिन सर्टनली अगर लोगों में अवेयरनेस लानी है तो वहां जाना भी पड़ेगा। Yeah. द बॉटम लाइन इज कि डिसिप्लिन हैज टू बी टेकन केयर। You are also a wildlife photographer. So, what prompted you to become a professional
and start giving the classes with respect to this? From where you got this motivation or inspiration? व्हाट आई थॉट कि लोग जाते हैं, जो बच्चे जाते हैं, वो इतने महंगे गियर तो खरीद लेते हैं, लेकिन उनको चलाना नहीं आता. तो what my it should not be they should not spend the money, they should invest it. अगर उन्होंने कोई अच्छी चीज ली है, महंगा लिया है, तो उनको चलाना भी आए. तो दैट्स व्हाट द न्यू बडिंग फोटोग्राफर्स, रादर पुराने फोटोग्राफर्स ने भी मेरे से अप्रोच किया कि और कि यू शुड टेल व्हाट इज द ट्रिप टिक्स एंड ट्रिप्स आर देयर. सो आई एम टेलिंग देम. And what motivated you? Because you are also a photographer, you are always looking for the right poses for the mammals or for the big cat. So from where you got the motivation? What is the kick that you are getting while doing all those things? Because you go all around the world, not only in India. या आई एम गोइंग टू अफ्रीका आल्सो. अब वो किक तो अंदर से आत्मा की आवाज ही निकलती है सब. जैसे अमिताभ बच्चन सर को क्या किक किया होगा कि एक्टर बने, या सचिन तेंदुलकर को क्या किक किया होगा कि वो क्रिकेट ही खेले, ऐसे ही मेरे को किक किया होगा. तो दैट इज किक तो आपको आएगी आएगी किसी भी फील्ड में. अगर आपसे पूछो आपको क्या किक किया पॉडकास्ट करने के लिए, कुछ ना कुछ तो किया होगा ना. Yeah. तो सेम वे. And in general, people think when we are doing wildlife photography, it's very risky. It's very challenging, and nobody knows what is going to happen there. So, what do you think about that? What is your experience so far of so many years? About what? About doing the photography of the wild animals, like you are doing it for tiger and You are not aware कि आपके साथ क्या होने जा रहा है. yeah. 3 days back, one accident was very big accident was happened in Ahmedabad. The plane crash. Nobody knows कि आपके साथ क्या होने जा रहा है. True. Life is like that. लेकिन generally they don't attack you without any reason. क्योंकि I am doing it from the last many years. इंसान तो तब भी बिना रीजन के अटैक कर देगा, जानवर नहीं करेगा. That is it. तो But why they will not attack? Because you are going very close to them, and they may feel threatened. They may feel that you are. then only they may. We are not going that close. We keep a respectable distance. लेकिन वो अटैक नहीं करता, क्योंकि एक रीजन ये भी है कि जो वहां पे एनिमल है, मैं अभी टाइगर या बिग कैट के पर्सन से बोल रहा हूँ, वो आपको बचपन से देख रहे हैं वहां गाड़ियां आती हुई, तो दे आर यूज टू इट. उनके लिए कोई नई चीज नहीं है. लेकिन जो एक आप बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे उनके, या उनके छोटे कब्स हैं, उनके बच्चे हैं, एलिफेंट हो, टाइगर हो, तब वो उनको लगता है वो खतरा है आपके लिए, तो वो अटैक नहीं करते. पहले आपको पहले एक वार्निंग देने के लिए एक मोक चार्ज करते हैं. दैट इज मोक चार्ज. वो आपको पहले बता देंगे कि यू आर एंटरिंग इन माय डोमेन, तो बेटर यू शट अप एंड गेट आउट. तो अगर आपने तब भी नहीं संभले, देन ओनली दे डोंट हैव एनी अनदर अल्टरनेट बट टू अटैक इट. दैट इज इट. अभी रणथंभौर, प्लीज. अभी रणथंभौर में ये हुआ है. They have killed one park official. That was very bad. नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हो सकता है ऐसा कुछ दूसरे इंटरवीन किसी ने, मैं अभी मुझे मालूम नहीं है क्या हुआ था, लेकिन ये हो सकता है कि उसने कोई इंटरवीन किया उसको टेरिटरी को, तो दैट इज ऑब्वियस. तो वो करेगा ही करेगा. मैं जैसे कह रहा हूँ कि आपके घर में कोई घुस जाए तो आप क्या करेंगे? उसका स्वागत, अगर अनवांटेड आता तो आप क्या उसका स्वागत नहीं करेंगे? आप उसको कहेंगे भाई साहब प्लीज, पहले तो आप उसको समझाएंगे, आप जाइए. दैट इज द मोक चार्ज. और अगर वो तब भी आएगा तो आपके पास लाठी उठाने के अलावा और कोई चारा नहीं. तो ऐसे ही वो जानवर करता है, लेकिन वो इंसान की तरह नहीं कि बिना किसी बात के आपको मारेगा. इंसान तो बिना किसी बात के भी मार देगा आजकल. So as you go for photography, what is your main objective?
to see the beauty of nature, to record it and spread to the awareness to the public. मैं जैसे अभी करता हूँ, then I will put on the social media. People like it, they give me kick. लोगों को अच्छी लगती है, they praise it, तो मेरे को भी अच्छा लगता है, तो फिर मुझे और अच्छा करने का दिल करता है. तो that's why I'm doing it. Everybody is doing for that. Now this is part of my profession also. किसी एक्टर ने पहले स्टेज किया, उसको अच्छा लगा, वो धीरे धीरे वो आके फिल्म में आ गया या स्टेज पे एक एक्टर बन गया, तो उसकी लाइफ का एक पार्ट हो गया. ऐसे ही किसी क्रिकेटर ने पहले गली में खेलना शुरू किया, फिर बाहर आके उसको अच्छा लगा, खेल पाता हूँ, तो देन ही बिकम ए क्रिकेटर. तो दैट इज अ जर्नी. उसमें अच्छा लगता है तभी आप करते हो, कईयों को अच्छा नहीं लगता तो वेनिश आउट, या वो नहीं कर पाते तो दे वेनिश आउट. कितने लोग आगे तक जाते हैं. True. Now, for quite some times, apart from doing the photography, you are also teaching how to do the photography, especially for the wildlife, wild animals. जी. So, all those people who are interested in this, why they are interested, means what is their motivation of learning this particular photography? नेचुरली जब वो इतना महंगा गियर लेके जाते हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग देयर डिजायर रिजल्ट, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है. तो कमी कहाँ है? देन दे कैन कम टू अस टू नो कि वेयर दे आर गॉन रॉन्ग, why they are the photographs which they want to click, they are not coming in that way. Then we'll tell them कि these are the camera settings, because photography is an art as well as a science. That is the only few genres just their science and art both are involved. Your camera is a science. Your settings of the camera is a science. How to do a composition कि सबको अच्छी लगे, how to produce that picture, that is an art. तो दोनों का एक जो मिक्सचर है, जो दोनों की एक कॉम्बिनेशन है, वो हम सिखाते हैं. क्योंकि किसी को अगर आर्ट का मालूम है, साइंस नहीं मालूम, तो वो भी गलत करेगा. साइंस का मालूम है, आर्ट नहीं मालूम, वो भी गलत करेगा. और किसी को दोनों चीजें नहीं मालूम कि व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज आर्ट इन दैट, तो देन दे गेट. अभी तो लोग मोबाइल से भी करते ही हैं. मैं क्या मैक्सिमम लोग, अभी हम पार्क में जाते हैं, पार्क व्हेन आई से पार्क, यू टू टेक इज अ नेशनल पार्क, तो हम पार्क में जाते हैं तो मैक्सिमम लोग मोबाइल से कर रहे होते हैं. दे आर नॉट फोटोग्राफर्स. वो मोबाइल से दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट. बट द पीपल who want to showcase, they want satisfaction कि yes, I did some better job, I did some better work, then they buy a camera. उसको कैमरा के लेने के लिए उसको ये लगता है कि हाँ अब तो मैं फोटोग्राफर बन गया, लेकिन उसको साइंस नहीं मालूम, उसकी आर्ट साइड नहीं मालूम, तो फिर वो हमारे पास आता है टू लर्न इट. तो देन वी टेल देम कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, how the settings has to be done, and what is the composition has to be done. That is the art part. तो इसलिए वो लोग आते हैं. And how do you understand the mood of the animal, say any lion or is very essential to understand it. That is very essential. With the practice, with the reading, with the study, everything comes. So can you give me a 1 minute? Yeah, I will take a book. This is the book. Yeah, I am not promoting it, but like this, you can study the books. Many documentaries on the animal behaviors. Many guides are there to read the animal behaviors. तो आपको पढ़ना पड़ता है. It's not कि आपने कैमरा उठाया, चले गए, फोटोग्राफर बन गए. उसके पीछे the deep study is there. कि what is their behavior like. अभी वो ये कर रहा है तो उसका next step क्या करेगा वो. So you have to be aware for everything. Can you give any example that how they behave, maybe any lion or maybe any elephant when they are with their child or something like that? With their cubs and calves, I am talking about
cats and mammals, Yeah. they are more aggressive. Okay. So at that time you have to be maintain respectable distance from them. कि अभी उनका बिहेवियर ज्यादा खतरनाक हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है, या उनका कोई इस समय प्रे है, उसके बीच में आप आ गए, उस समय वो थोड़े से खतरनाक हो सकते हैं. तो दिस इज Hmm. अ पार्ट ऑफ द बिहेवियर. अगर उनका लाइक एलिफेंट, if that is a must mean they want to go for a mating, for looking for a female, तो Yeah. वो हो सकता है वो ज्यादा एग्रेसिव हो उस समय. देन उसके यहाँ से एक कुछ निकल रहा होता है, देन वी अंडरस्टैंड कि अभी इसके आसपास भी जाना खतरनाक है, तो ही कैन बी अ डेंजर टू अस. तो दीज आर द थिंग्स which make you aware. So Mhm. for that you need your guides. क्योंकि गाइड्स आर वेरी, पार्क के अंदर गाइड्स आर वेरी असेंशियल, दे आर आवर एसेट. उनको Mhm. पूरा मालूम होता है. देन वी आल्सो स्टडी द थिंग्स, वी आल्सो keep ourselves updated with each and everything. And just to have this ecological balance uh, with the humans, with the forest, and with this wild animals, what do you think should be done? Means how the people who are living in cities or in the villages, how they should understand the importance of these forests and these wild animals. What do you think about it? That what is the right way or the best way to approach them? They should study the things, or they should keep them some aware. और उसके बाद we people are there to, like with your podcast, many people will get the idea कि how important forests are with us. और अभी तो मुझे लगता है कि people are aware about it. नहीं अवेयर होंगे तो देन उनका नुकसान ही है. दे विल फील द हीट ऑफ दैट फॉरेस्ट, और जो कट रहे हैं पार्क या जंगल कट रहे हैं, तो उससे जो इकोलॉजी जो प्रॉब्लम आ रही है, तो दे विल फील इट. तो उससे अपने आप आ जाएगी अकल, तो अपने आप समझ आ जाएगी. Mhm, mhm, mhm. And what do you think how the awareness can be improved, especially to the young generation? Because if they understand it better, then डॉक्यूमेंट द थिंग्स बाय डॉक्यूमेंट्रीज, बाय जितना भी सोशल मीडिया है, अभी तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई. बहुत Mhm, ज्यादा अवेयरनेस आ गई, तो पहले तो नहीं थी इतनी. सोशल mhm, मीडिया से काफी अवेयरनेस आ गई, और भी आ जाएगी. लाइक इन विद योर पॉडकास्ट, मैनी पीपल विल सी इट, और वो भी देखेंगे कि यस, अवेयरनेस हैज टू बी देयर, व्हाई दे आर एसेंशियल फॉर अस. mhm, तो mhm. अपने आप समझ जाएंगे, और ये And what आने is की बहुत जरूरी है. and what is the role of zoo? Because there are so many zoos all over India and globally. Uh, does they also help in any way with respect to having a better awareness about the forest and about the wild animals? यस, 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 अनडाउटली. बिकॉज जू आर वेरी एसेंशियल, क्योंकि उसमें आपको इंट्रोडक्शन होती है किसी भी एनिमल के साथ. आप पहली बार आपने अभी देखा होगा टाइगर, या आपने लायन कहाँ देखा होगा? आपने जू में ही देखा होगा. Yeah. जू में देखा होगा. दीज आर इम्पोर्टेंट, बट ओनली थिंग इज कि व्हाट इज देयर मेंटेनेंस ओवर देयर, हाउ दे आर कीपिंग इट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड अभी थोड़े दिन पहले किसी कंट्री में, थाईलैंड में, दे आर चेन द टाइगर, और उसके साथ घूम रहा है सो कॉल्ड जू, और उसने स्टिक किया और टाइगर ने उस पर अटैक कर दिया. इट शुड नॉट बी दैट Mhm. टाइप ऑफ जू. मैनकाइंड डोंट वांट. द जू इज द थिंग्स है कि उसमें उसको अच्छी तरह मेंटेन करके रखा जाए एनिमल को, और पीपल को अवेयरनेस हो. और मुझे भी वहीं से हुई होगी, रादर सभी लोगों को वहीं से होती है. उसके बाद दे गो टू देयर नेचुरल हैबिटेट. Mhm. 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 दैट इज देयर. तो दे आर आल्सो एसेंशियल. उनका भी होना जरूरी है, लेकिन उसके अंदर उनको कैसे रखा जाता है, दैट एनिमल को, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जो उसको भी ये ना लगे कि वो जेल में है.
So in a way, there's nothing wrong in having zoo, but the animals should be treated in a proper way, so that they can feel that yes, they are at Yeah, the right place, not like they are being controlled. that is debatable, but this is my personal opinion. कि zoo is important, but the treatment is much more important than that. क्योंकि जितने भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होंगे उनका अवेयरनेस शायद जू से ही आई होगी क्योंकि मुझे तो वहीं से आई तो Mhm. आई थिंक दैट हैज टू बी बट देयर एनिमल्स की केयर उसमें दे शुड बी वेरी एसेंशियल. So before we close, any incident which you'd like to share where you went for photography and you had some experience which you'd like to share with everyone, which you had not expected? Every time something or other keep happening. अभी last week I was there in Jim Corbett, the one mother elephant, वो अपने calves के साथ थी तो शी चार्ज ऑन अस वो चार्ज थोड़ी देर आके रुक गई वो लेकिन ये चलता रहता है समटाइम टाइगर कम्स वो भागेगा एकदम टाइगरस उसके साथ अगर छोटे बच्चे होंगे तो दे डोंट लाइक यू टू बी इंटरवेन इन देयर बिटवीन देयर यंग एंड विथ यू तो ये तो दिस अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर ट्रेड आवर आवर वट एवर यू से तो दैट इज अगर क्रिकेट खेलोगे तो बॉल भी लग सकती है True, 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 तो true. that has to be there तो आपको चलना ही पड़ेगा उसके साथ. Wonderful, wonderful. Thank you, Mr. Bhatia. Thank you very much. I think we had a very interesting session today wherein we talked about different aspects. We started first by talking about the wildlife, about forest, about the importance of it, and why it is important for the ecological balance. And after that, Mr. Bhatia shared his experience as a photographer, his passion about it, and how, as a photographer, they are also contributing in some way with respect to telling the people that why there should be a balance between the the forest and the animals and the people who are living in cities and the villages. And as long as we are not disturbing them, they are not going to disturb us. But in case we are entering into their home, then there is a high possibility that they will also charge and they can also kill us. So we should respect the boundaries, and when we'll respect the boundaries, they will also respect it. Thank you, Mr. Bhatia. Thank you very much. Thank It you was a very very much insightful for session. having me. Thank you very much. And I'm sure your podcast will be very, give some uh, that message to the mankind. Thank you very much. Thank you. Thank you very much.